Rinki? Yes, ma'am. Yeah, we are not able to hear you. Have you started? Yes, ma'am. Wait a minute. Good morning, students. Today, hello, students. Hello. Today we'll take one topic from our English subject, non-textual passages, as how to solve your non-textual passage in your question paper. There are few techniques to solve it easily. We'll see it today as how to solve our non-textual passage. First, we'll discuss about our question paper. Our question paper will consist of 80 marks and it will be divided into few sections. Altogether, you will have 6 sections. We'll discuss about it today. The first section will have questions based on grammar. It is basically your grammar questions which you have in your textbook, in your language workshop, English workshop. It will have weightage of 10 marks. Okay. Next section is your textual passage, means you will have passages from your textbook, from your lessons, prose, and you will have 2 passages, and those 2 passages will have weightage of 20 marks. Means one passage will have weightage of 10 marks. The third section is your textual poem, in which you will have 2 type of questions. First is your reading comprehension. It will be of 5 marks, and the second will be your poem appreciation, and it will weigh 5 marks. Next section is our non-textual passage. So non-textual passage, in this you will have 2 questions. One question will be based on your reading comprehension and it will carry 10 marks, and the second one will be based on your summary writing summary, and summary writing will have 5 marks. Next section is section 5, writing skill. In this you will have your letter writing and other writing skills. Okay, and you will have 3 writing skills over here. Next is your creative writing. Creative writing, in this you will have 2 topics, expansion of ideas and all. So here each topic will carry 5 marks. So here you will have 2 activities of 10 marks. So today we'll discuss about section number 4, non-textual passage. Now we'll see which type of questions will come or can come in your non-textual passage, means what is expected from you to answer, which type of questions will be there. Question based on your reading skill, means while you will read your passage, it will test your reading skill, means you have understood and you are able to get the answers. So the question will be based on your reading skill. Next is your vocabulary. Vocabulary means your meaning, synonym, antonyms. Next question will be from your grammar. So again, you will have 2 marks of grammar questions over here. And your summary writing. So non-textual passage will have these type of sub-questions. We'll see which type of questions will come in comprehension. Okay. So your section 4, question number 4A.
Question number 4A. Read the following passage and do the activities. You will have 5 activities which will be related to your passage. First activity is your simple factual question. Simple factual question. Students, you can understand from this word only that question will be based on your facts from the passage. Only you have to pick out the facts which is asked over there in this question, and that fact will be of simple questions. You don't have to comprehend thoroughly for this question. You can read your passage, you can scan your passage, and you can easily get your answer. Which type of questions? It will carry 2 marks. Either you will have 4 questions in this one, first question, each question of half marks. So what type of questions you will get over here? Filling the blanks, true or false, diagrams. So in diagram, students, you will get either chart or tree diagram or web diagram. Mostly we have seen that in questions we get web diagram, or you will get complete the sentence. So you will have simple complete the sentence, simple fill in the blanks kind of sentences. Okay. Next question is your complex factual question. Now here complex doesn't mean that difficult. Complex means you have to understand this question in order to answer, in order to find out your answer from the passage. So for this you need to read your passage thoroughly, and it will be of 2 marks. Either you will be asked 1 question or 2 questions based on the complexity of the question, and you will get type of questions here are complete the sentence or your diagrams. Again, if you will have your diagram in the first question, you won't get in the second one. Okay, if you will have your diagram in the first A1, you won't get that same diagram from the second question. Next is your vocabulary. In your vocabulary part, you will have questions of related to synonyms. Synonyms means meaning. 1 word for, either you have to write 1 word for the given phrase or sentence. Antonyms, you will have your opposites or parts of speech. Here, questions based on your parts of speech, like you have to either pick out adverb from the passage or adjective from the given passage or noun from the given passage. Okay. Also, you may get questions for filling the blanks, for preposition or conjunction. So this is your vocabulary part. Next is your do as directed. Do as directed means your grammar. This question will have 2 marks. The last one is personal response question. Students, in this question, you have to answer the question based on your opinion. For this, you don't have to find out, you don't have to search from the passage. You have to read this question and you have to apply your own knowledge, your own opinion for this question. It will have 2 marks. Okay, now we'll see the next. So this is your 4A question. 4A, in this question 4A, you will have 5 questions. Each question will have 2 marks. Next is your question 4B. Read the passage given in question number 4A. This is very important. Why? Because for this question 4B, you will not have separate passage. You will have to read the given passage. You have to read the passage which is given in question number 4A and write the summary of it. Suggest a suitable title to your summary. So what 3 important things are mentioned here. The first is that of this
of which passage you have to write summary, the passage which is given in question number 4A. And you have to give suitable title. What happens students कि हम passage पढ़ के summary लिख देते हैं, but sometimes we forget to write title and it will cost you 1 mark. You will lose your 1 mark if you will not write title. And for title you don't have to think very complex title. You can easily pick out one word or phrase from the given text, which is the central theme of the text, and you can put it as your suitable title. So you don't have to think of very different title. You have to understand that here you will get marks for writing correct title, not writing the complex title. Okay. Next is your title will have 1 mark. When you will write your summary, you have to give a suitable title which has to be related to your passage. Next is central theme or central idea, means what is given in that passage, what is the main objective of that passage, what is discussed in that passage. You have to write that and you will get 2 marks for that. Next is your appropriate language. Here your grammar, your spelling, sentence construction, everything related to your knowledge of language will carry 2 marks. So here students, if you will see this part marking scheme, you can make out that easily, very easily you can get 3+ marks, more than 3 marks. 1 mark for writing your title. If you will have problem in writing the central theme, so at least you will get 1 mark over there. And for the language 1, so minimum, I'm not saying that you will get 3 marks only, minimum you can get 3, but you can get more than 3. So out of 5, 3 is not a bad at all. Okay, so let's discuss now how to solve our passage. We'll practice one passage. Okay, students, for non-textual passage, you will have one activity before your passage. Means you will be having activity number A1, and then you will have your passage. We'll see the structure of your passage. So your first activity, you'll have instructions like read the given passage and do the given activities. So your first question is name the following. Your first question is name the following. Now, I suggest you one technique to solve these unseen passages, because it is not given in a text, so you won't be aware of the passage. So, but before reading that passage, I will suggest you to do reverse reading. Now, what is reverse reading? Reverse reading ये होता है कि जो क्वेश्चन नंबर A1 में आपको क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को रीड करके यू कैन गेस कि आपका पैसेज कौन से टॉपिक पे बेस्ड होगा. एक हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे. So before reading, jumping to the passage, please read your first question. It will help you to get an idea at what is given in the passage or what is about it. The first question is the government authority which built and operates the Delhi Metro. So here I got one keyword, Delhi Metro. Let's see the next question. The first and the oldest metro in India. So here we'll have few things, few words related to Delhi Metro and metro in India, and which one was the first metro and the oldest metro. First metro कौन सा था इंडिया में और वो oldest metro था. Third question, the satellite cities nearby Delhi. So here satellite cities के बारे में बात हो रही है दिल्ली से, कि दिल्ली के satellite cities कौन कौन से हैं. The largest and the busiest metro in India. So एक और क्वेश्चन होगा, largest and busiest metro in India. कौन सा ऐसा metro है जो largest है और busiest है. So here students, before reading this passage,
वी कैन मेक आउट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको सजेस्ट करेंगे कि योर पैसेज का कॉन्सेप्ट क्या है, पैसेज में क्या डिस्कस किया होगा। मैंने गेस किया, आपने भी गेस किया होगा। अब हम देखेंगे कि रियली में हमारा गेस करेक्ट है कि नहीं। विल सी द आवर पैसेज। ओके, नाउ बिफोर first technique is reverse reading. So with the help of reverse reading we can make out that ये Delhi metro से related passage होगा. Now students, while you will read these paragraphs, you can get your answers while reading. You don't have to read the whole passage and then find out the answers. While reading only you will get your answer. तो अभी हम लोग questions again revise कर लेंगे कि हमें क्या क्या answers ढूंढना है. पहले हमें ढूंढना है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी विच बिल्ड एंड ऑपरेट्स, किसने ये दिल्ली मेट्रो बिल्ड किया है और ऑपरेट कौन करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा ओल्डेस्ट मेट्रो, फर्स्ट मेट्रो कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा दिल्ली के नियर बाय सैटेलाइट सिटीज कौन कौन से हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन हमारा लार्जेस्ट और बिजिएस्ट मेट्रो कौन सा इंडिया का। तो हमने क्वेश्चन रिवाइज कर दिया गया। अभी हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे व्हाइल रीडिंग दिस पैसेज। Delhi Metro is a metro system serving Delhi and its satellite cities of Bahadurgarh, Vallabhgarh, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Noida. Students, we got our answer. एक आंसर मिल गया, सैटेलाइट सिटीज। कौन कौन से सैटेलाइट सिटीज है? बहादुरगढ़, वल्लभगढ़, फरीदाबाद, so which are the cities here mentioned over here? Bahadurgarh, Vallabhgarh, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Noida. We got our one answer we got. Okay. Now, in the National Capital Region of India, Delhi Metro Rail Corporation Limited, a state-owned company with equal equity participation from the Government of India and the Government of Delhi, built and operates the Delhi Metro. So here, Delhi built and operates the Delhi Metro. कौन? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लिमिट जो है ये क्या एक कंपनी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो स्टेट ओन्ड है, मतलब दिल्ली जो है उसको उसने ओन किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का में भी उसका पार्ट है। तो ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो ये कंस्ट्रक्ट करता है एंड ऑपरेट करता है दिल्ली मेट्रो। नाउ वी गॉट वन मोर आंसर, हमें दो आंसर मिल गया। We got our first answer and the third answer. Now we'll continue. It is the second oldest metro in India after the Kolkata metro. Now students, यहाँ direct answer नहीं दिया गया है। You have to understand कि अगर दिल्ली मेट्रो सेकंड है, सेकंड ओल्डेस्ट है आफ्टर कोलकाता मेट्रो, तो फर्स्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट हो गया आपका कोलकाता मेट्रो। सो फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया जो बना था वो कौन सा था? कोलकाता मेट्रो। So we got our three answers we got. Now, next question. Delhi Metro is the largest and the busiest metro in India. We got another answer. Delhi Metro is the largest and busiest metro in India. So all answers are clear now here. Now, so the government of authority which built and operates Delhi Metro, कौन सा authority है? ये हमारा फर्स्ट आंसर है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट मेट्रो इन इंडिया कौन सा है? ये है हमारा आंसर, कोलकाता मेट्रो। थर्ड, द सैटेलाइट सिटीज नियर बाय दिल्ली, कौन कौन से सैटेलाइट सिटीज है? ये है हमारा थर्ड आंसर। द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट मेट्रो इन इंडिया कौन सा है? दिल्ली मेट्रो। सो दिस इज आवर फोर्थ आंसर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या क्या एडवांटेजेस क्या हुए? एक ही बार पैसेज रीड करने पर हमें पैसेज का जिस्ट समझ में आ गया, सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया कि पैसेज किसके बारे में है। इसके साथ साथ हमने आंसर्स भी ढूंढ लिए। इससे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट रीडिंग के टाइम हमें
और ज़्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइम पे हमें बहुत बेनिफिट होगा इसका, हम देखेंगे अभी। तो मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ ही रीड किया था, फर्स्ट कुछ 10 लाइन्स रीड किए और मुझे ये आंसर्स मिल गए। तो मेरा जो 2 मार्क्स है यहाँ कंफर्म हो गया और ज़्यादा समय भी नहीं लगा मुझे। नाउ विल कंटिन्यू। ये तो हो गया हमारा A1 एक्टिविटी। नाउ विल सी A2 एक्टिविटी। The salient feature of Delhi Metro. Now what is salient? Salient means very significant, very important features. क्या क्या है उसके features? Okay, ये क्वेश्चन में ढूंढना है। Then find out antonyms from the passage. Now what are antonyms? Antonyms are your opposite words. Students आप similar words याद रखो, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन का में जो वर्ड है उसका मीनिंग नहीं आता, बट हमें उसका आंसर पता होता है। इसीलिए एंटोनिम, सिनोनिम, अभी मीनिंग, अपोजिट, ये वर्ड की जगह पर आप ये एंटोनिम और सिनोनिम वर्ड यूज करना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको इजी हो जाएगा। तो एंटोनिम्स मीन्स योर अपोजिट वर्ड, बट आप अपोजिट वर्ड कहाँ से ढूंढना है? फ्रॉम द पैसेज। समटाइम्स यहाँ पर क्या मिस्टेक्स होता है स्टूडेंट्स, कि सब बच्चे एंटोनिम्स डायरेक्टली अपने ओन से लिख देते हैं, बट बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज रीड द क्वेश्चन थॉरली, वेरी केयरफुली, बिकॉज कभी कभी जल्दबाजी में हम ऐसा मिस्टेक कर देते हैं जहाँ पर हमारे मार्क्स यूं ही ऐसे लूज हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं करना है आपको। तो हमें एंटोनिम्स लिखना है, बट कहाँ से? फ्रॉम द पैसेज। हमें खुद से एंटोनिम नहीं बनाना है, पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। So which are the words? Shortest, increasing, irregular, ended. Okay, so these are your 4 words and you have to find antonyms of these words from the passage, and it has one question has 1 mark. Next question, the Delhi Metro is the largest and the busiest metro in India. This is your grammar question, do as directed question. So इसका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। It means that students हमें क्वेश्चन नंबर A1, A2 और A3 के लिए ही पैसेज की जरूरत है और बाकी क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है। So complete the following sentences with the help of the given sentence. यहाँ एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया गया है, इसके हेल्प से आपको ये कंप्लीट करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये ग्रामर का जो टॉपिक है डिग्री का, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, उस पे ये बेस्ड है क्वेश्चन, ये दोनों। ओके, सो इसका आंसर आपको ओन से लिखना है, यू डोंट हैव टू search for this answer from your passage. Okay, next question is your personal response question. We have already discussed कि A5 हमारा personal response question होता है। क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स transporting, like rail, which are the different modes of transportation? Rail, road. Okay, and it is backbone of our Indian economy. हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसका बैकबोन है। बैकबोन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। ओके, सो फॉर A1 we'll again see the passage. Which are the salient features of Delhi Metro? So till here we had discussed about, हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। Now हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Delhi Metro is largest and the busiest metro in India and the world's 9th longest metro system in length and 16th largest in ridership. So 9th पोजीशन पे है लॉन्गेस्ट मेट्रो, मतलब 9th पोजीशन पे आता है, और 16th लार्जेस्ट राइडरशिप, मतलब राइडरशिप मतलब रेगुलर ट्रैवल जो करते हैं, कितने कितने ट्रेन ट्रैवल करते हैं, उसमें वो 16th नंबर पे आता है दिल्ली मेट्रो। A member of COMET, the network consists of 8 color coded regular lines. So 8 color coded regular lines हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट, जैसे हमारे बॉम्बे में सब हमारे वेस्टर्न लाइन है, सेंट्रल लाइन है, हार्बर लाइन है, तो वैसे वहां पर वो लाइंस को वो लोग कलर्स में इंडिकेट करते हैं। तो 8 कलर कोडेड रेगुलर लाइंस हैं। टोटल लेंथ कितना है दिल्ली मेट्रो का? 317 किलोमीटर, सर्विंग 231 स्टेशंस इंक्लूडिंग 6 on airport express lines and interchange stations. The system has a mix of underground, at grade and elevated station. So here underground भी है,
एलिवेटेड भी है, ओके, और नॉर्मल रूट पे भी है, यूजिंग बोथ ब्रॉड गेज एंड स्टैंडर्ड गेज. And DMRC means your Delhi Metro Rail Corporation operates over 2,700 trips daily. Daily इतने trips होते हैं. So these are and in financial year 2016-17, the Delhi Metro had an average of daily ridership of 2.76 million passengers. So daily 2.76 million passengers travel करते हैं and serve 100 crore राइडर्स. इतने 100 करोड़ राइडर्स, 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है उतने लोगों को सर्व करता है. सो द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वाज सर्टिफाइड बाय यूनाइटेड नेशंस in 2011 as the first metro rail and railway system in the world to get carbon credits for reducing. ओके स्टूडेंट्स, हमारा एक यहाँ क्वेश्चन है इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग का ऑपोजिट क्या हो गया यहाँ पर? हमें एक वर्ड मिल गया, reducing. Greenhouse gas emission and helping reducing pollution level in the city by 6,30,000 tons every year. Planning for the metro started. एक क्वेश्चन हमारा है ended. Ended का ऑपोजिट क्या मिल गया हमें? Started. In 1984, when the Delhi Development Authority and the Urban Art Commission came up with the proposal for developing a multi-modal transport system for the city. Delhi Rail Corporation was incorporated in May 1995. Construction started in 1998 and the first section on the red line opened in 2002. The development of network was divided into phases. Phase 1 containing 3 lines was completed by 2006 and phase 2 in 2011 and phase 3 in 2000 we mostly completed by 2018. तो इसमें दिया गया है कि पैसेज में दिया गया है कि 3 फेजेस में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था. फर्स्ट फेज जो कंप्लीट हुआ वो 2002 में हुआ. सेकंड फेज हमारा कंप्लीट हुआ 2006 में. सेकंड फेज 2011 में एंड थर्ड फेज बाय 2018. ओके, सो विद दिस वी कैन मेक आउट कि सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं हमारे दिल्ली मेट्रो के, और हमें साथ ही साथ 2 ऑपोजिट वर्ड्स भी मिल गए. अब हमें ढूंढना है शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट हमने यहाँ पर कहीं पर तो पढ़ा था स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट. हाँ ये रहा, हमने आंसर में भी ये सेंटेंस में ये वर्ड आया है. तो शॉर्टेस्ट का ऑपोजिट लॉन्गेस्ट हो जाएगा. इंक्रीजिंग का ऑपोजिट रिड्यूसिंग. इररेगुलर. नाउ इररेगुलर का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें पैसेज में मिलेगा. ओके, सो इररेगुलर का आंसर यहाँ पर है रेगुलर लाइंस. यहाँ पर दिया है. ओके, सो वी गॉट आवर एंटोनिम्स आल्सो. हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते हमने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं. तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ग्रामर है, वो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगी. और लास्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इसमें क्या है कि आपको अपना ओन जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे आपको बताना है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन से हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है. क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो सेकेंड प्राइमरी सेक्टर जो है वो भी डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी जो है सेक्टर, जिसमें जैसे फैक्ट्रीज में जो गुड्स बनते हैं, प्रोड्यूस फिनिश गुड बनते हैं, वो सेकेंडरी में आता है. तो वो भी जो फिनिश गुड है वो मार्केट में लाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. तो दिस वे आप हाईलाइट कर सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हमारे इकोनॉमी को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन था स्टूडेंट्स इसलिए इतना समय लगा. व्हेन यू विल गेट योर क्वेश्चंस, व्हेन यू विल प्रैक्टिस, यू कैन इजीली आंसर. नाउ we'll see how to write answer in your आंसर शीट. अभी आंसर शीट में आंसर कैसे लिखना है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर A1 है,
ओके, उसका आंसर लिखने के लिए हम लोगों को सेंटेंस कॉपी करना है और जो हमारा आंसर है उसको अंडरलाइन करके रखना है. सो दिस इज द वे यू शुड राइट योर आंसर, बिकॉज हाफ मार्क का है. फॉर हाफ मार्क you should write the sentence as well as your answer part. Next is your A2 activity, salient features of Delhi Metro. So here I have written the answer. So this way you have to write your answer. No need to copy question separately and then start writing. You can start writing your answer along with your question. So here question already मैंने दिया हुआ है answer में ही, and then I have continued with the answer. Now A3 activity, your opposite. So this is the way you should write. Directly आप longest मत लिखिएगा, shortest word लिखने के बाद आपको वो word लिखना है. जैसे अगर आपको synonym आया तो synonym word यहाँ लिखने के बाद आपको उसका आंसर लिखना है, similar word. A4 आपका जो आंसर है, no other metro in India is as large and busy as the Delhi metro. तो यहाँ पर as large and as आ गया है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है. सेकेंड, द दिल्ली मेट्रो इज लार्जर एंड बिजियर देन आ गया है. दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री. स्टूडेंट्स, ये आंसर आपको जब तक आप डिग्री का क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं लिख पाएंगे. ये यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि ग्रामर का एक टॉपिक है और आज हम सिर्फ नॉन टेक्सुअल पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर डिस्कशन है. नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्टेशन. ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है तो आपको खुद से लिखना है, मैंने यहाँ आंसर नहीं लिखा है. ओके, तो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना. हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4B, समरी राइटिंग. फॉर समरी राइटिंग आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स ध्यान देने हैं. रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है अंडरलाइन करने का. जब आप पैसेज पढ़ोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइप जो का क्वेश्चन था हमने अटेम्प्ट किया, so I started underlining, highlighting the key points. So for attempting summary means क्या होता है कि आपको 10 लाइन्स में कोई चीज दी गई है, आपको उसको कंपोज करना है either 4 और 5 लाइन्स में, बट उसमें से लाइन्स आपको कॉपी करके नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स अंडरस्टैंड करके, कॉम्प्रीहेंड करके अपने ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, बट आपका ओपिनियन नहीं होना चाहिए, ओन वर्ड्स होना चाहिए. सुटेबल टाइटल देना है. थीम और जिस्ट, मतलब जो मेन सेंट्रल आइडिया जो है पैसेज का, वो आपको ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप वो सारे आइडियाज कॉपी करने जाओगे तो सेम टू सेम पैसेज कॉपी हो जाएगा. बट यू हैव टू अप्लाई योर लैंग्वेज स्किल ओवर हियर, in which you have to understand and you have to frame sentences, you have to use your conjunctions and all. Avoid using exact lines, same exact lines copy नहीं करना है पैसेज में से. डोंट एक्सप्रेस योर ओपिनियन. आपको पैसेज में जो दिया गया है वही आपको लिखना है, आपको अपना खुद का ओपिनियन नहीं देना है. ओके, मार्किंग स्कीम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सुटेबल टाइटल 1 मार्क्स, सेंट्रल थीम 2, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज 2 मार्क्स. नाउ मैंने जैसे कहा था क्वेश्चन नंबर 4A में जो आपको पैसेज है वही पैसेज का समरी लिखना है. तो ऑलरेडी हमें पैसेज का आइडिया है कि दिल्ली मेट्रो के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने आंसर्स में लिखे A1 और A2 में, वो सारे आंसर्स हमें यहाँ पर इंक्लूड करने हैं. सो द दिल्ली मेट्रो इज अ मेट्रो सिस्टम सर्विंग दिल्ली एंड सैटेलाइट सिटीज ऑफ बहादुरगढ़. सो दिस विल कम इन योर आंसर. Delhi Metro is built by DMRC. Okay, it is the second oldest metro. Delhi Metro is the second oldest metro and it is the largest and busiest metro in India, and the world's 9th longest metro in length and 16th largest in ridership. A member of Comet, the network consists of 8 color-coded regular lines. So here 8 color-coded regular lines होंगे. And the length of the Delhi Metro is 317 kilometers, serving 231 stations, 6 on airports, express line and interchange stations. The system has a mixed underground at grade and elevated stations, using both broad gauge and standard gauge. DMRC operates 2,700 trips daily. Financial year 16-17, Delhi Metro had an average daily ridership of 2.76 billion, served 100 crore billion riders. The Delhi Metro Rail Corporation was certified by the United Nations. So it was
You again, students, you don't have to write the same word again and again. Instead, you can write in short abbreviation that DMRC was certified by United Nations. क्या certified किया था United Nations में? It is the first metro rail and rail-based system in the world to get carbon credits for reducing greenhouse gas emission. तो जो ये greenhouse gas emission है उसको reduce करने वाला ये first metro rail था. So this is very important and helping introducing reducing pollution levels in the city by 6,30,000 tons every year. Planning for the metro started. So planning started in 1984, but it was completed in 3 phases. Completed in 3 phases. So first phase was containing 3 lines. 2006 first phase हुआ था. Second phase 2010 में और जो थर्ड फेज है आपका 2018 में. तो हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिए हैं स्टूडेंट्स. अब हमें देखना है आंसर कि कैसे लिखा जाता है. फर्स्ट मैंने क्या किया है यहाँ पर, आई हैव गिवन टाइटल विदाउट फेल. मैंने एकदम सिंपल टाइटल दिया है स्टूडेंट्स. आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टाइटल दे सकते हैं और टाइटल हमेशा आपका ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, थोड़ा बड़ा साइज में लिखना चाहिए. 2 लाइंस आप कवर करेंगे. सो कैसे आपका टाइटल थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ टाइटल लिखने के मार्क्स नहीं है, टाइटल को प्रेजेंट भी अच्छे से करना है आपको. सो आई हैव रिटन अ सिंपल टाइटल. मैंने इसको सिंपल एकदम टाइटल दे दिया है जिसमें स्पेलिंग एरर होने का चांस नहीं है. दिल्ली मेट्रो. ओके, आप दूसरा भी कुछ दे सकते हो. द लार्जेस्ट मेट्रो इन इंडिया, फिर डैश करके दिल्ली मेट्रो. एनीथिंग यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू योर ओन विश, बट इट हैज टू बी फ्रॉम योर पैसेज ओनली. नेक्स्ट, मैंने ये आंसर्स लिखे हैं जिसमें मैंने ये पैसेज का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस किया है. जो मैंने अंडरलाइन किया है वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किया है. सो आपको ये 15 to 20 लाइंस जो भी रहेंगे उसको आपको कंपोज करना है. आइदर मिनिमम 8 लाइंस तो होने चाहिए. 6 to 8 लाइंस में होगा. ये फॉन्ट बड़ा है इससे आपको बड़ा पैसेज दिख रहा है, बट ये बहुत ही, अगर आप सेंटेंसेस काउंट करेंगे तो इट विल ओनली आपका 8 to 10 सेंटेंसेस ही होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस आई हैव टेकन टुडेज टॉपिक. अभी एक और हम एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर हम 8:40 को आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. आपके जो डाउट्स हैं, हमारे पास अभी 2 मिनट्स हैं, तो 2 मिनट्स में हम ये देख सकते हैं. पैसे सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम आइडिया लेंगे कि हमें समझ में आया कि नहीं. क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. व्हाट डिड पीपल डू नॉट नो अंडरस्टैंड, व्हाट डिड द पीपल नॉट अंडरस्टैंड इन द अर्ली डेज ऑफ फार्मिंग. तो हमने यहाँ पिक आउट कर लिया है कि इंपॉर्टेंट वर्ड कि यहाँ पर फार्मिंग के बारे में कुछ बात हो रही है. व्हाट इज मैन्योर. मैन्योर क्या होता है? फर्टिलाइजर जो होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. मैन्योर मीन्स वो जो खत डालते हैं फार्मिंग के टाइम पे वो. तो हमें पता चल गया कि फार्मिंग से रिलेटेड पैसेज होगा. व्हेन शुड फर्टिलाइजर्स बी अप्लाइड. अभी फर्टिलाइजर कभी अप्लाई करना चाहिए. व्हाट डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर कब प्रॉफिटेबल है, कब एडवांटेजियस है, वो कैसे पता चलेगा. तो हमें पता चल गया कि ये जो पैसेज है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे. ये पैसेज किससे रिलेटेड है? फार्मिंग से रिलेटेड है, जिसमें डिस्कस किया हुआ होगा कि फार्मिंग के टाइम पे फर्टिलाइजर कैसे यूज करना है, कब यूज करना है. ओके, तो हम पैसेज पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बट मैंने आइडिया आपको दे दिया कि कैसे करना है. सो हम आंसर्स ढूंढेंगे. नेक्स्ट है हमारा A2 एक्टिविटी. हाउ डिड द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल बिगिन. अभी यहाँ सॉइल में मैन्योर ऐड करने के बारे में दिया गया है, खत ऐड बारे में दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट इज अबाउट फाइंड आउट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. अभी सिमिलर वर्ड मतलब आपको यहाँ पर मीनिंग ढूंढना है, बट पैसेज में से ढूंढना है. सो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया.
क्वेश्चन नंबर A4 हमारा अभी क्या हो गया, हमारा एक्टिविटी जो डू एज डायरेक्टेड का है, ग्रामर पार्ट का है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, और लास्ट जो है एग्रीकल्चर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी ना, यहाँ हमारे एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बताया गया है। तो हम बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, 75% पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और जो भी हम फिनिश्ड गुड्स यूज करते हैं सिटीज में, अर्बन एरियाज में, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमें विलेजेस से मिलता है। ऐसे हम आंसर्स अपना ऐड कर सकते हैं। आई हैव रिटन आंसर्स भी मैंने लिखे हैं। Next is summary writing. Again, for summary writing, you have to underline the key points and then you can proceed with your title. Students, please don't forget to write title because it is the most important thing. जहाँ पर आप थोड़ा सा लिख के आपको 1 मार्क स्ट्रेट अवे आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 टाइटल दिया है, एक दिया है मैन्योरिंग प्रोसेस इन फार्मिंग एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो भी है ये मैंने आंसर लिखा है। So with this, students, we have completed our today's non-textual passage as how to solve our passage without putting much of stress and without consuming time. Okay, students. Now, please, if you have any question, please do ask. You can unmute your mic and you can ask. Yes, Nikita, you're raising your hand. Nikita, you're raising your hand. You have any doubts? Sonu Vaishya, Rupesh Singh, unmute yourself and ask your doubts. You're raising your hands. One by one, let Sonu ask. Hello. Yes, let Sonu ask. Sonu, you're asking? Yes, teacher. Hello. Yes. Yes, Sonu, please do ask your. Teacher. Hello. हाँ बोलिए सोनू। Yes. सोनू अपना क्वेश्चन पूछिए। Rupesh, you continue asking question. यस मैम, जब भी हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस कौन से लिखने पड़ते हैं? आंसर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कौन से लिखने पड़ते हैं, मतलब मैं समझी नहीं, क्वेश्चन आपका क्या है? मतलब जब हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे वर्कशीट पे, तो कौन से क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे अच्छा, आंसर्स लिखते समय? हाँ मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था कि आपको आंसर अपने आंसर शीट पे लिखना कैसे है। मैं एक बार वो स्लाइड फिर से आपको दिखाती हूँ, उसी वैसे ही आपको आंसर लिखने हैं, आपको सारे क्वेश्चंस कॉपी नहीं करने होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको स्लाइड में, वेट अ मिनट। ये जो है ये आपका आंसर शीट है। मैंने देखो यहाँ पर आप लोग जो इंस्ट्रक्शंस कॉपी कर देते हो ना, रीड द गिवन पैसेज एंड डू द एक्टिविटी, वो सब आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। आपको इंस्ट्रक्शंस कॉपी नहीं करने हैं। नेम द फॉलोइंग, वो देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं है, जबकि मैंने यहाँ पर देखिए ब्लैंक रखा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैंक रखा है, कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने लाइन क्वेश्चन नंबर 4A लिख के लाइन लीव किया है। A1 में आपको नेम द फॉलोइंग लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर में, मैंने वो भी नहीं लिखा है, क्योंकि आपका एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली आप वो जो A, B, C और D जो दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसलिए हम लोगों को पूरा लिखना है, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है, कंप्लीट द सेंटेंस टाइप का है, तो हमें स्टार्टिंग का सेंटेंस लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द वे यू शुड राइट योर आंसर। अभी आप देखोगे A2 जो है, A2 में ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया था कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, लेकिन मैंने वो वर्ड नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने डायरेक्टली A2 लिख के जो क्वेश्चन था सेलिएंट फीचर्स वो लिखा और मैंने आंसर स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे यहाँ पर लिखा था फाइंड आउट एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन पैसेज, लेकिन मैंने वो वर्ड भी नहीं लिखा है यहाँ पर, वो लाइन कॉपी नहीं की मैंने। वो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आपको सिर्फ पढ़ के समझने के लिए होता है, कॉपी करने के लिए नहीं होता है, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के ये सेंटेंस के बाद आपको लिखा हुआ था कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, डू एज डायरेक्टेड, वो वर्ड आपको कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको यहाँ क्वेश्चन कॉपी किया मैंने आंसर लिखना स्टार्ट किया। नेक्स्ट
ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मैंने वो वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, डायरेक्टली मैंने अपना आंसर लिखना स्टार्ट किया क्वेश्चन से कनेक्ट करके कि क्यों हम इसको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं. सो दिस इज द वे यू शुड राइट योर आंसर. क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन पेपर में जब आप इंस्ट्रक्शंस कॉपी करने लगते हैं तो आपका जो टाइम है वहां पर वेस्ट हो जाता है, और वही क्या होता है बाद में आपको राइटिंग स्किल में आपको टाइम कम पड़ जाता है. तो वो मिस्टेक अगर आप अवॉइड करेंगे तो राइटिंग स्किल में आप बहुत टाइम दे सकते हो, क्योंकि राइटिंग स्किल के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक सोचना है आपको, फिर आपको अपने माइंड में ही सब अच्छे से सीक्वेंस में लगाना है, फिर लिखना है. तो आप लोग अपना पैसेज में टाइम वेस्ट नहीं करें, जितना अलॉटेड टाइम है उतना ही यूज करें. और एक और इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आंसर के लिए प्लेस जगह छोड़ के, लाइंस छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कीजिए, क्योंकि उस आंसर को ढूंढने में पहले से आप स्ट्रेस रहेंगे तो आगे के आंसर्स का जो टाइम है उधर मिसयूज हो जाएगा. तो नेक्स्ट टाइम कभी भी जो आंसर नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़कर आगे बढ़ जाइए. ओके रुपेश, आई थिंक आपको ओके. क्लियर हो गया. यस टीचर, सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है और जो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स वो सब लिखना है. हाँ बेटा, इंस्ट्रक्शंस कभी भी कॉपी मत करना. आपको जो क्वेश्चन हाफ मार्क का दिया रहेगा तो उसका सेंटेंस आपको क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ मार्क है ना, तो आपको यो हाँ. करना पड़ेगा. बट क्या होता है एग्जाम में, अगर बच्चे ने नहीं कॉपी किया है तो भी बच्चों मतलब बच्चों को बेनिफिट मिलता है, वहां पर मार्क्स डिडक्ट नहीं करते, बट अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपको वो लिखना चाहिए. पर इंस्ट्रक्शंस प्लीज कभी भी मत लिखिए. ओके, थैंक यू मैम. हाँ, नाउ Lakshmi, unmute yourself please and to ask your question. Yes, Lakshmi. Yes, ma'am. हाँ बोलो. Lakshmi, you can ask. Yes, ma'am. मैम, हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, हाईएस्ट स्कोर वाला कि रेगुलर जैसे जाते वैसे करना चाहिए? बच्चा, आपके जो आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखोगे ना, तो वो है ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, मतलब फैक्ट से इमेजिनेशन की तरफ जाता है. आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, लैंग्वेज स्टडी, तो वो ग्रामर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आप जानते हो, तो आपको इजी होगा सॉल्व करने के लिए. फिर आपका टेक्सचुअल पैसेज होता है. अब मैं आपको ओके हाँ, आपका जो दिया हुआ है, जस्ट मैं एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ, यहाँ पर आप देखोगे ये पेपर पैटर्न है आपका. तो आपका पेपर पैटर्न में सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज स्टडी है, ग्रामर. तो आपको तो ग्रामर का पॉइंट्स पता ही होता है कि हमारे ग्रामर के टॉपिक टेक्स्ट बुक में कौन कौन से दिए हैं, तो आप पहले यही अटेम्प्ट करो, पहले यही अटेम्प्ट करो. सेकेंड जो है सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज, इसमें क्या फायदा है आपको कि आपको पैसेज का जो स्टोरी है आपको पहले से पता है, तो आपको पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे जंप करोगे तो आप आंसर्स फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आपको पहले से नॉलेज रहता है. इसीलिए आप टेक्स्ट बुक के जो लेसन्स हैं, जो प्रोज पोएम है, वो जब आप पढ़ते हो ना अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो स्टोरी अगर लाइन स्टोरी फॉर्मेट में अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको मेन इवेंट्स, मेन उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो सब याद रहेगा पैसेज सॉल्व करने टाइम पे. तो जैसे हमने नॉन टेक्सचुअल किया था वैसे आप टेक्सचुअल पैसेज भी सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट रहता है हमारा टेक्सचुअल पोएम. तो पोएम हमें पता ही रहता है, जो टेक्स्ट में से आएगा, हमारे चैप्टर में से आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पोएम भी आपको पहले से पता है, उसमें पोएम में पोएट ने क्या बोला है, क्या उनका मेन आइडिया है जो बताना चाहते हैं रीडर्स को. तो आप है ना जिस सिक्वेंशियल मैनर में ये दिया हुआ है ना, उसी सीक्वेंस में आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना. मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग या राइटिंग स्किल पहले लिखूंगा क्योंकि 5 मार्क्स है. बच्चा आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर 25 मार्क्स है, 80 मार्क्स में से 25 मार्क्स ही इधर है, बाकी के सभी मार्क्स तो यहाँ पर है. तो आप सीक्वेंस से स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग से फर्स्ट सेक्शन पहले कीजिए, सेकंड बाद में कीजिए, थर्ड बाद में कीजिए, उसके साथ ही फॉलो अप कीजिए. अब इसमें सॉल्व करते वक्त भी जिसका आंसर नहीं आएगा उसको जबरदस्ती 10-15 मिनट मत दीजिए. नहीं आया आंसर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. आपको
एटलीस्ट 2.5 आवर्स में, 2.5 घंटे में पूरा क्वेश्चंस आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है. ओके, सो आई थिंक लक्ष्मी को क्लियर हो गया. नाउ निकिता श्रीवास्तव, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. प्लीज, अभी टाइम बहुत कम है, जो पूछना है आप पूछिए. निकिता. हेलो मैम. हाँ, यस खुशबू. हाँ, मैं खुशी बानो. समरी राइटिंग में टोटल पॉइंट्स कवर करना है. टोटल मेन पॉइंट्स कवर करने हैं. जैसे दिल्ली मेट्रो के बारे में था, तो दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करने हैं. कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे, जैसे अभी कोलकाता को मेंशन किया, तो उसमें कोलकाता का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं थी हमें. तो आपको जो मेन पॉइंट्स है वो, और जैसे 2 सेंटेंस रहेंगे ना, तो कंप्लीट सेंटेंस में जो कीवर्ड रहेगा उस कीवर्ड को लेके ही सेंटेंस बना दीजिए 3-4. जैसे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा था ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है. तो वो सारा जो ग्रामर है ना वो यहाँ आपको अप्लाई करना है. ओके, खुशी बानो, आपका डाउट क्लियर है? मैम कितने लाइन मतलब लिखना है समरी राइटिंग? अगर आपका पैसेज 20 लाइंस का है तो कम से कम, मतलब आप कितना भी ट्राई करोगे एज अ स्टूडेंट, तो आप 8 लाइंस तो लिखोगे. बट वो 8 लाइंस आपका पूरा पैसेज का जिस्ट होना चाहिए, थीम होना चाहिए उसमें. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का पहला पैराग्राफ में से 8 लाइन कॉपी कर दिया और नीचे के पैराग्राफ के लाइंस नहीं लिखे. पूरा अच्छे से पढ़ के फिर आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है. प्लीज स्टूडेंट जल्दी पूछिए. साक्षी प्लीज पूछिए जल्दी. हेलो मैम. हाँ, यस. मैम अगर हम लोग को समरी राइटिंग लिखना है तो कितने लाइन में होना चाहिए? मैंने अभी ये बताया, अभी मैंने खुशी बानो को वही मैंने बताया कि एटलीस्ट अगर 20 लाइन का पैसेज रहेगा आपका, तो 8 लाइन तो आप कैसे भी करके लिखोगे ही. तो 5 मार्क्स का ही है ना, तो 5 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कीजिए बस. कितना लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता आंसर में. आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आंसर का पार्ट है वो है आप कैसे सब कुछ कवर कर रहे हो. क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है. ज्यादा लाइन लिखने का ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के मार्क्स मिलेंगे. और आपने कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया है वो आपका वहां पर एप्लीकेशन पता चल जाएगा, आपका नॉलेज, तो उस पे मार्क्स मिलेंगे. हाँ, नेक्स्ट. Next, I think students have cleared your doubts. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू Okay. सो मच. Yeah. हैव अ Thank you, नाइस डे. Rinki ma'am. Thank you very much. Very nice explanation. Complete detailed explanation you have given, how to solve the paper, how to write the passage, where the students have the difficulties. You have already cleared all those points. And thank you for clearing the doubts also. Thank you, Rinki ma'am. थैंक यू मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. Thank you.